In the interest of the time, I'll start the program. First of all, we welcome our chief guest and our own family member, Ms. B. Gavaskar, Satyasai Sanjeev, Chairman Chief Sir, all the respected doctors, the wing staff, and all our friends from media. Welcome to this Temple of Healing, which is, we call it Sir Dil Bina Dil, a unique place where there is no billing counter, everything is provided with love, care, and compassion. I would like to request Dr. Srinivas to officially welcome everyone. Pranams at the lotus feet of our beloved Swami. With deepest respect and admiration, I extend my heartfelt greetings to the esteemed Padma Bhushan Sunil Gavaskar, my revered mentor, guide, and inspiration, Chairman of Sri Satya Sai Health and Education Trust, Dr. C. Srinivas, Brother Sri Arvind Tyagarajan, esteemed members of print and digital media, fellow doctors, ladies and gentlemen, a warm welcome to each one of you. It's a privilege to welcome you, sir, who is the Padma Bhushan and whose sterling achievements in cricket and unwavering commitment to philanthropy have touched hearts worldwide. His remarkable legacy serves as a testament to transformative power of sports and the profound impact of giving back to society. Sir, your presence enriches our celebration today. Today, we gather to commemorate yet another remarkable achievement of Sri Satya Sai Health Cure and Health Care. The successful treatment of 30,000 children and the inauguration of Sri Satya Sai Sanjeevani Heart Care Skill Development Institutes. All services here are provided totally free of cost. Sri Satya Sai Sanjeevani stands as a beacon of hope economically disadvantaged families with children suffering from heart ailments. It has not only saved the lives of 30,000 children, but also brought solace to their parents and siblings. For young parents embarking on the journey of parenthood, discovering that their child has a heart ailment can be a devastating blow. Sanjeevani offers them a ray of hope for the future, embodying the ethos of love all, serve all, and providing a sanctuary in their time of need. The compassionate nursing and unwavering dedication of Sanjeevani teams across India have contributed to countless tables of truth. We salute to these healthcare hospitals, heroes who are working here, who have touched and transformed 30,000 lives, extending their healing touch not only within our nation but across the globe. Another cause for the celebration today, as I said, is the launch of Institute of Healthcare Skills for Rural India. Now, this is again offered tuition free, totally free of cost. This initiative empowers young aspiring individuals to pursue education rooted in empathy and dedication, fostering a new generation of healthcare professionals. On this momentous occasion, I extend my warmest welcome to each one of you who is present here. Sai. Hello everyone. I would like to call one of the patients, and I want the media to see she is the child who was operated for pediatric heart disease, which is barely some months old, and today she is welcoming none other than Sunil Gavaskar.
cardiac surgery does. You have such baby, lovely child. Who knows what they'll become tomorrow, probably leading Indian women's cricket team one of these days, or operating on some pediatric patients. We don't know. I would like to invite after this to announce the 30,000 likes, the surgery that we've done. Dr. C. Srinivas, Chairman, Sri Satya Sai Health Education. He's basically the backbone for everything that we see. Hindi में बात। त्यांना बसायला सांगू का? बसून करून घेऊ का? तिकडे बसून करून घेऊया. परम पूज्य भगवान श्री सत्य साई बाबा, ये संस्थाओं के स्थापित, उनके चरण कमल में नमन करते हुए परम आदरणीय और प्रिय भाई समान श्री सुनील गावस्कर जी, हर एक सदस्य सत्य साई संजीवनी परिवार की जो देश और दुनिया में निर्विराम निरंतर निस्वार्थ सेवा पहुंचाते हुए, उन सभी को हमारे दिल से बहुत बहुत प्यार और अभिनंदन। और आज उपस्थित हुए खारघर सत्य साई संजीवनी में इतनी बड़ी मात्रा में प्रेस के भाई बहन जो आज सत्य साई संजीवनी परिवार के सदस्य आप बन गए। Today truly is a most momentous and heart-moving day. In life, the most joyous moment in a family is to celebrate a birthday of your child. This day we have all gathered here, and I'm sure many of you will leave with eyes watering and hearts moved, because we are celebrating first giving life not to one but to an unimaginable 30,000 children come from different parts of the country. It is truly incalculable, first in terms of effort that has gone in to make the Satya Sai Sanjeevani healthcare system, and to my fellow trustees, colleagues, Brother Sunil Gavaskar and Shri Vivek Gaur, with the blessings of Bhagwan Shri Satya Sai Baba and Sadguru Madhusudan Sai, every single member, my dear brothers and sisters, had to toil through night and day, through moment, because congenital heart surgery does not give you 1 second of time. If you are not attentive and careful, you can lose the child. To have delivered so many in the last few years, especially from so unserved geographies of our country, is something immensely contributory to the nation. Like we always say, the health of a child is the true wealth of a nation. Children, when they are operated in Satya Sai Sanjeevani with love and compassion, totally free of cost, in their hearts are also put the seeds of love, goodwill and gratitude. Heart एक दिल होता है, वो दिल भगवान का मंदिर होता है। हम सब जानते हैं दिल के बारे में,
वो प्यार भरा रहता है। और एक माँ और बाप जब अपने बच्चे को हजारों किलोमीटर से ये संस्था को लेके आते हैं और कई सत्य साई संजीवनी संस्थाओं को लेके आते हैं, तो क्या गुजरता होगा उनके मन और दिल में। और जब ये वरदान जैसे आप देखेंगे थोड़े क्षणों में उनको वापस देंगे, और इस 12 सालों में 30,000 परिवार जो अपने परिवार बन गए, हमारे सबके परिवार बन गए, ये कितनी भाग्य की बात है। कल तक तो अपना एक परिवार था, आज 30,000 परिवार अपने देश के समर्पित सेवा में हम सब शामिल हैं। ये बहुत ही बड़ी बात इसलिए मैं बोलता हूँ भाई बहन, सत्य साई संजीवनी देखने में एक अस्पताल है, बट उससे बड़ा ये एक समाज सेवा संस्था है, और उससे भी बड़ा ये एक देश सेवा संस्था है, और उससे भी बड़ा एक मानव परिवर्तन संस्था है। I believe that hospitals are institutes of human transformation, because when you get the gift of life, you get the gift of hope and time, and that results in transformation. जब दिल बदलता है तो आदमी बदलता है, और जब प्यार उस दिल में डालते हैं अपन, ये आप देखते जाएंगे कितने बच्चे यहाँ एक प्रतिज्ञा लेकर जाते हैं कि वो देश और समाज और दुनिया की सेवा करेंगे। मेरा ये मानना है थोड़े साल के बाद एक सुनील गावस्कर बैठा होगा यहाँ पे, इसमें क्या शक की बात है, ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि जब प्यार से अपन सेवा करते हैं तो यही होता है मेरे भाई बहन। 30,000 तो आज है, अब आने वाले दिन तो बहुत बहुत बिखरना है। सफर तो बहुत लंबा है, अपने आगे करने को बहुत कुछ है। आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद हम सबको चाहिए, और हम जीवन दीप जलाएं और जीवनों को देते जाएं और जिंदगी को एक सुंदर सा सफर बनाएं। ये है सत्य साई संजीवनी की सफर और जीवन कहानी। आप सबको दिल से बहुत बहुत और आपने जैसे कहा कि ये मानव संस्था सेवा है, मेरे हिसाब से ये उससे भी बड़ी चीज है। ये है जहाँ पे भगवान का वास होता है। आप भगवान का नाम दो, अल्लाह का नाम दो, जो भी देना है, और जो ट्रूली डिवाइन सेंटर है, क्योंकि और वो पॉसिबल तभी होगा जब आपके पास में एक बहुत अच्छी टीम है। और आपकी टीम ने, आप लोगों ने आज एक स्किल सेंटर का भी उद्घाटन किया है, क्या आप उसके बारे में कुछ बताएं? आप सही फरमाए ममता जी। आज शुरुआत भी अपने प्यारे भाई सुनील गावस्कर के हाथ से हुआ, जो शायद पहली ऐसी संस्था है जो नेशनल हेल्थ केयर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। जब हमारी पहली संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू हुआ था 2011 के आसपास, वो एक ट्राइबल स्टेट था, और समय गुजरते गुजरते वहाँ पे हम छत्तीसगढ़ की प्रांगों की सेवा करते गए हैं। और आप सुने होंगे वहाँ एक एरिया है बस्तर करके एक नाम का एरिया होता है वहाँ पे, और वो एक बहुत ही ट्रबल्ड और नक्सल इन्फेस्टेड एंड ट्राइबल इन्फेस्टेड एरिया है वो। हमारी वहाँ सरकार से एक समझौता है कि वहाँ के बच्चों की हम एजुकेट, एम्पावर और एम्प्लॉय प्रोग्राम में उनसे जुड़े। और ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज मेरे भाई बहन, जो शायद महाराष्ट्र में उतना इसका प्रभाव नहीं है, ये जो बच्चे कभी जिंदगी में एक पेयर ऑफ शूज नहीं थे उनके पास, एक बस या रेलवे ट्रेन कभी जिंदगी में नहीं देखे वो, क्योंकि उनका जीवन बस उनका एक छोटा गांव रहता था और वही रहता था उनका गांव। आज एक खुशी की बात है, पीडियाट्रिक कार्डियक ऑपरेशन थिएटर में वो बच्चे आज नर्सेस हैं, आईसीयू में वो बच्चे नर्सेस हैं, क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट में
ये बच्चे नर्सेस है और टेक्नीशियंस है और केयर गिवर्स है। इनके दिल और दिमाग में एक ऊर्जा है, एक भूख है कि जिंदगी बनाएं और अपन देश की सेवा करें। तो इस समझौता के बाद जिससे हमने 300 बच्चे बच्चियों, खास करके बच्चियों को एक जीवन दिखाए हम, तो ये स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव महाराष्ट्र सरकार ने हमसे एक आदेश किया कि क्यों ना आप महाराष्ट्र में ये शुरुआत करें। तो आज ये शुरुआत होने का ये शुभ दिन है। और खास बात ये है कि पहली बैच 75 स्टूडेंट्स की है। अभी इतने एप्लीकेशंस आ गए हमारे को, उत्तराखंड से लेके नागालैंड से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके, अभी भगवान जाने वो कैसे करेंगे हम। मगर ये बात देखिए कितने अपने नौजवान बच्चे बच्चियां हैं अपने देश में जो जिंदगी बनाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जो रूरल अनसर्व ज्योग्राफीज के बच्चे हैं वो अगर अपने शहर में आए और उनको एक एजुकेट, एम्पावर और एम्प्लॉय प्रोग्राम में अपन शामिल करें, वो कल देश का नाम, देश का शान और देश का काम करने बड़े बच्चे बनेंगे। तो ये एक यूनिक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ केयर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जो महाराष्ट्र स्किल्स डेवलपमेंट एंड नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव की कार्यक्रम है। ये पूर्णतः निःशुल्क सेवा है देश की समर्पित में। सत्यसाई संजीवनी में हर कुछ पूर्णतः निःशुल्क होता है, क्योंकि हर एक बच्चा, हमारा मानना है, जो भगवान हमें सिखाया, वो अपना बच्चा है। कोई माँ बाप का बच्चा ही तो है वो, मगर अपना ही बच्चा होता है। और बच्चे पे अपन काम करेंगे वो तो देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उस पर अपन कोई अंडर सर्व नहीं करना चाहिए। क्या मालूम वो एक कौन बनेगा देश में अगर अपन उन पे इन्वेस्ट करें। सो द इन्वेस्टमेंट इनटू चिल्ड्रन is the biggest investment a country can make, and that is what Sathya Sai Sanjeevani does in this form of the National Skills Development. Thank you so much for telling us that. एक आवाज जो अभी इतने समय में अच्छे से गूंज रही थी, वो एक बच्चे की चेहरा तो असली गा रही थी। This is truly a gift of life, and I would ask Mr. Omkar Joshi and Dr. Pratibha. Omkar Joshi is the trust officer and Pratibha is the head of the department of pediatric cardiac surgery. Thank you so much. Sometimes real superheroes live in the hearts of small children fighting big battles. हमें लगता है कि ये बच्चे तो हार्ट की बीमारी से ठीक हो गए, पर वो हमारे पास जब आते हैं तो उनकी जो हार्ट की कंडीशन होती है इतनी खराब होती है कि हम भी सोचते हैं कि ये अब तक जी कैसे पाए। So they are the CHD warriors we call them, and 30,000 are this CHD warriors of Sanjeevani family, and we have 4 of them who have come here। 4 बच्चे यहाँ पे आए हैं जो 2019 में हमने ऑपरेट किए थे, और हम पीछे स्लाइड भी दिखाएंगे, बाद में आपको शायद शेयर भी कर सकते हैं कि 4 साल पहले वो कितने नन्हे से थे और आज कितने बड़े हुए हैं। तो फर्स्ट मैं बोलना चाहता हूँ नेहा भालेराव को। नेहा भालेराव, उनके पेरेंट्स जल्दी से आगे आइए। अगर आप पीछे तब तक स्क्रीन पे देख सकते हो, नेहा जब 4 साल पहले कितनी छोटी थी। आइए आगे आइए भैया, सामने आइए। Neha was a 3-month-old baby when she came to us one late afternoon. She had a condition called PAPVC. So normally जो प्योर ब्लड होता है वो हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड में जुड़ना चाहिए, बच्चे को राइट साइड में जुड़ रहा था और बॉडी को अच्छा खून नहीं मिल रहा, और उस रास्ते में भी उसको रुकावट थी। तो इमरजेंसी में बच्चे को मेरे गोद में बिठा दो, सुनील की गोद में। Grow up to be a 4-year-old, 4 years 9 months. मराठीमध्ये बोलतो पण त्यांना मराठी आपलं कुठून आलात साहेब आपण? आणि नाशिकला होतो. अच्छा, आणि काय प्रॉब्लेम होता एकदा नेहाला आधी इकडे याची तब्येत बिघडली होती. 3 महिन्यानंतर तिला दवाखान्यात घेतलं, त्याने सांगितलं त्याचा प्रॉब्लेम आहे.
त्याच्यानंतर मग आम्ही एसीबीटीला गेलो. तिथे डॉक्टरांनी सांगितलं खागरमध्ये नवीन हॉस्पिटल ठेवले, तिथे तुम्हाला निःशुल्क ऑपरेशन होईल. त्यांनी सांगितलं आल्यानंतर लगेच त्यांचा नंबर आला आणि इमर्जन्सी म्हणून ऑपरेशन करायचं. आता नेहा शाळेत वगैरे जायला लागेल. हो, नर्सरीमध्ये. हो, नर्सरी. सगळे ऍक्टिव्हिटीज सगळे नॉर्मल व्यवस्थित. हो. तुम्हाला कसं वाटलं इथे संजीवनी मध्ये तुम्ही आता 4 वर्ष येतात मला फॉलोअप मध्ये काय वाटतंय? We'll have एक साथ में ग्रुप फोटो बाद में खींचेंगे चारों बच्चों के साथ बाद में. साबिया नेक्स्ट आ जाइए. ओके. साबिया की कंडीशन को पेटेंट डॉक्टर सासियोसिस. हर बच्चा जब मोबाइल फोन के अंदर रहता है एक कनेक्शन जरूरी होता है. उस टाइम लंग्स जो होते हैं फेफड़े जो होते हैं वो काम नहीं करते. वो अच्छा खून जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है स्टूल के जरिए बच्चे के बॉडी को जाता है. पैदा होके जब वो पहली बार रोता है और उसका लंग्स खुल जाता है तब दादू क्या देंगे देखते हैं दादू क्या देंगे. जिन बच्चों से खुला रहता है तो ये खून उल्टा हो जाता है और अच्छा खून लंग्स के अंदर करने लगता है. ऐसे में इनको सर्जरी या कैथ लैब में लेके जाके इसको बंद करना जरूरी होता है. ये भी नन्ही सी बच्ची थी जब हमने इसका पीरियड प्रोग्रेस किया था और अभी फीस खुल जा रही है. भैया कितने महीने की थी जब ये यहाँ पे आप लेकर आए थे उसको? 6 महीने की. 6 महीने की थी. अभी क्या उम्र है इसकी? 5 साल. 5 साल हो गए. तो क्या मतलब कैसे यहाँ तक कैसे पहुंचे आप संजीवनी में? कैसा रहा? ये जो है मतलब पैदा हुई थी. हाँ, सांस बंद हो गई. हाँ, तो सांस लेने बहुत तकलीफ थी. ऐसा लगा था तो सब जो है ये एडमिट किए बच्चों हॉस्पिटल में. फिर आईसीयू में थी 4-5 दिन वेंटिलेटर पे थी. तो दवा चालू था तो इसका मतलब दवा से कंट्रोल करते हैं. 6 महीना लगा वो पता चला कि नहीं होएगा. कोई ऑपरेशन नहीं इसका. एजुकेशन और मैं पूछा क्या करूँ. बोले आप यूनाइटेड चले जाइए या समाधान किया. ये मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी रायपुर. अच्छा, मुझे कुछ पता नहीं था ऐसा भी होगा. लेकिन जब हुआ तो मैंने उसको सर्च किया तो मुझे रायपुर यहाँ का जो है एड्रेस मिला. तो आया तो जो है यहाँ पे फोन किया मुझे बुलाया गया. मैं आया. मैंने किया तो मुझे जो है अपॉइंटमेंट मिला 1 महीने का. मैं आया मेरा ऑपरेशन हो गया बहुत अच्छा. जो उस टाइम जो है पहले दूध भी नहीं पीती थी बहुत और हमेशा जो बीमार रहती थी लेकिन ऑपरेशन के बाद भी बहुत अच्छे से रहती है. तो अभी स्कूल भी जाएंगे? हाँ, जाएगी स्कूल. मीडिया सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कार्य में क्योंकि आप जो स्प्रेड कर रहे हो बहुत सारे लोग ये देख के यहाँ पे आ रहे हैं. हाँ, आपका नाम बताइए. कहाँ से आए हैं? मेरा नाम इरशाद अहमद सिद्दीकी है. मैं वसई से आया हूँ. वसई से. आप साइड में आइए. नेक्स्ट बच्चे मिथांश. और नेहा दोनों का कंडीशन हम ये किसी बोलते हैं. इनका भी अच्छा हमको लेने आने वाले पाइप्स गलत राइट साइड में था तो इनको भी ऑपरेट करके इनको नॉर्मली कनेक्ट करना पड़ा. ये बच्चा हमें हमेशा याद रहेगा क्योंकि कोविड का लॉकडाउन था और हमें हॉस्पिटल्स भी बंद थे. हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे और उसी दिन तूफान भी आया था निसर्ग. बच्चे ने पेरेंट्स को भी बचाया. ये अलीबाग से है फिशरमैन. तो क्योंकि बच्चा इतना सीरियस हुआ ये अलीबाग से बाहर आ गए तो ये तूफान से बच गए और यहाँ आए तो ये फर्स्ट ऑपरेशन था कोविड के टाइम में किया था. तो दैट इज माय काय नाव आपलं? नाव काय आपलं? विलास झेले. विलास. तुम्ही काय काम करता? मी दुसऱ्यांच्या बोर्डवर काम करतो. मासेमारीचं काम. कुठून आला काय? मी आता अलिबाग. तर मिथांश आता 4 वर्ष झाली ऑपरेशन 20 साली झाला होता. तुमचा तुमचा एक आठवण सांगा की जी तुम्हाला कायम लक्षात राहते संजीवनी हॉस्पिटल बद्दल. संजीवनी हॉस्पिटल बद्दल आम्हाला खूपच म्हणजे असं चांगलं वाटतं. मॅडमने सरांची खूप आमची मेहनत घेतली. छोट्याची
ते आम्हाला जेव्हा आलो तेव्हा आम्हाला या हॉस्पिटलचं काही काय आम्हाला माहिती नव्हतं. जेव्हा तो बेलापूरचा एक मित्र होता त्याने आम्हाला पूर्ण हॉस्पिटलची माहिती दिली. त्यांच्या कृपेने आम्हाला हॉस्पिटल येण्याची संधी दिली. जेव्हा ते आम्ही आलो तेव्हा आम्हाला त्या मॅडमने चेकअप केला. तेव्हा मॅडमने जरा आम्हाला सल्ला दिला बाळाची जरा तब्येत खूप हे आहे, 50% गॅरंटी 50% वगैरे. मॅडमला मी म्हणालो मॅडम जो काय होईल ते इथे होऊ दे, आम्ही घरी येऊन आम्ही काय करणार, तेवढं काय तुमच्या कृपेने जर काय होईल ते होऊ दे, तुमच्या का आम्ही नाही. ते मॅडमनी खूप मेहनत घेतली. सर्जरी लॉकडाऊन मध्ये होता, संपूर्ण म्हणजे सर्व बंद होता. मॅडमनी जेव्हा लॉकडाऊन मध्ये तुफान पण आला आणि जेव्हा मॅडमनी याचं चांगलं हे केलं, जेव्हा आता 12 दिवस हॉस्पिटलमध्ये बोला मॅडम आणि सरांनी माझ्या मुलाला 2 दिवस मुलासाठी आणि मुलासाठी जेव्हा मॅडमनी त्यांच्या मुलासाठी 12 दिवस सांभाळलं तेव्हा आम्हाला डिस्चार्ज दिला. जेव्हा आम्हाला मॅडम बोलली म्हणाली की बघा 12 दिवस मी माझ्या मुलासारखं सांभाळला. जेव्हा एक महिन्यानंतर तुम्ही चेकअप येशील जेव्हा मुलाची जराशी तब्येत चांगली झाली पाहिजे, जेव्हा मी 12 दिवस सांभाळलं तसं तुम्ही महिनाभर सांभाळला. आणि जेव्हा मला मॅडम असं म्हणाले तेव्हा माझ्या डोळ्यातून अश्रू आले. आमच्या दोघं जेव्हा मॅडम मुले आमच्या मुलाचं जीवन, जेव्हा आपल्या सत्यसाहेबांची त्यांच्या पाठीशी साथ आहे तशी आमच्या वाणी सर्वांच्या पाठीशी साथ आहे. Saipem was 6 days old when he came to us. He operated when he was 7 days old. So, condition को PGA बोलते हैं. जैसे आप जानते हैं कि अशुद्ध रक्त राइट साइड में रहता है और प्योर ब्लड लेफ्ट साइड में. इन बच्चों में जो ट्यूब बॉडी को सप्लाई देना होता है वो अशुद्ध रक्त के चेम्बर से कनेक्ट हो जाता है और जो प्योर ब्लड देने वाला जो पाइप है वो लास्ट की तरफ कनेक्ट हो जाता है. सो इन बच्चों को पैदा होके 1 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन करना अच्छा होता है और उसमें पाइप्स को अदली बदली करनी होती है. साथ ही साथ इन पाइप के साथ कोरोनरीज बोलते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जो हार्ट को खून देता है. हार्ट पूरे शरीर को खून देता है बट हार्ट को भी खून चाहिए. तो हार्ट को जो खून देने वाले छोटे पाइप्स होते हैं, हमारे 4-5 बाल अगर इकट्ठा करके देखेंगे तो उतने साइज के होंगे, तो उनको भी हमें ट्रांसफर करना होता है. तो इसका ये सर्जरी हुआ था. फादर बहुत बीमार थे, उनकी मदर बहुत हिम्मत वाले हैं. डॉक्टर ऋषिकेश और उनके फ्रेंड के जरिए 6 दिन के बच्चे को लेके आए यहाँ पे और ऑपरेशन करा के लेके गए. शायद 2 साल के बाद पिताजी जब ठीक हुए हमने उनको पहली बार देखा. आपलं नाव सांगा, कुठून आलात तुम्ही? जळगाव. इथपर्यंत पोहोचलात कसे संजीवनी आश्रमपर्यंत? अच्छा. आणि तुम्हाला कधी कळलं की बाळाला हा त्रास होतोय? डॉक्टरने सांगितलं. मी 6 दिवसाचा असताना बाळाला इकडे घेऊन आला. ऑपरेशन किती दिवसाचं असताना झालं? 11 दिवसात. 7-8 दिवसात झालं ऑपरेशन. आता तुम्ही तेव्हा त्याचं नाव पहिल्यापासून साईप्रेम होतं का इथे आलं? इथे ठेवलं, सरांनी ठेवलं नाव. इट्स अ व्हेरी युनिक थिंग ना की दे थॉट की, पण का वाटलं तुम्हाला इथे कशाला नाव ठेवावं? तुम्हाला का वाटलं असं नाव ठेवायचं?
रिक्वेस्ट कि पीछे आप एक बार देख सकते हो कितना छोटा बच्चा था 7 दिन का जब वो आया था स्क्रीन पे। That child I request सब बच्चों को आगे आइए आप। आइए सब बच्चे। Stand here. इधर ये सगळ्यात झोपलाय का बरं तुम्ही या घेऊन या एक फक्त झोपलाय ना त्याला इथे हार्ट पेरेंट्स बॅक स्टँड झोपलाय ना त्याला पाठीला नाही घ्या तुम्ही जाऊन घेऊन हार्ट डिजीज या बच्चों की दिल की जो बीमारी होती है ये आपके सामने है कि अगर वक्त पे इनका इलाज होता है तो ये नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं और समाज में एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिटीजन की तरह रह सकते हैं। अगर किसी बच्चे को सांस तेज लेना या दूध पीने में दिक्कत होना, माथे पे पसीना, खांसी, जुकाम जल्दी पकड़ लेना, उम्र के हिसाब से वजन न बढ़ना या बच्चा नीला पड़ना, यही मेन सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे में ये है तो उनका तुरंत चेकअप कराना जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली ट्रीटमेंट यही दो चीजें हैं जो बच्चों को कंजेनिटल हार्ट डिजीज से मुक्त कर सकता है। संस्कृति और एक बच्चे जब डिस्चार्ज हुई है संस्कृति आप जाइए उनके मागे आ जाओ संस्कृति बाहर गेले ठीक है विल जस्ट गो टू द नेक्स्ट truly a gift of love। और ये तो मीडिया वाले सब मानेंगे कि आप लोग बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और न्यूज कवर करते हैं, पर दिल को छू लेने वाली मीटिंग्स बहुत कम है। और ये जो काम कर रहे हैं वो दिल को छू लेने वाला तो है ही। हर आदमी की आंखें नम हुई हैं आज ये देख के, वो जब वो माँ की आंखें नम होती है। और हार्ट फेल्ट थैंक यू आज जो संजीवनी के डॉक्टर्स को मिला है। आई थिंक वो ट्रू स्टोरी है। मैं ये नहीं बोल रही कि बाकी की ट्रू स्टोरीज नहीं है, बट ये स्टोरीज है। और ये बच्चे जो यहाँ पे पहुंचे उसमें आप लोगों का भी योगदान काफी। जब आप एक मीडिया में कवर करते हैं इस तरह की स्टोरी, जब उसको एक इम्पोर्टेंस देते हैं जो कि वो डिजर्व करता है, तो आपके माध्यम से कितने बच्चे यहाँ पे पहुंचेंगे और कितनों की जान बचेगी। ये बात स्टोरी लिखते समय प्लीज ना, ये हमारी रिक्वेस्ट है। Just one gift of life to the child who is getting discharged. Sanskriti, who underwent a very complex TAPVC surgery, which Madam has already expressed. Sir, if you can hand over the gift of. And her smile tells it all. These are truly stories of miracles which are made possible because of the doctors, because of Satya Sai Sanjeevani's contribution. The philosophy which Satya Sai Sanjeevani Hospital works is 360-degree comprehensive care, which is why they started the maternal and child centers. इसका मतलब ये है कि काफी कुछ ध्यान अगर माँ का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में रखा है, बराबर इंफॉर्मेशन दी गई, उसको बराबर न्यूट्रिशन दिया गया, ये इंफॉर्मेशन दी गई कि कौन सी दवाइयाँ ना खाएं, कैसे ध्यान रखें, कैसे ये करें, तो ही काफी कुछ प्रॉब्लम बच्चों की भी जल्दी डिटेक्ट हो सकती है। और इतने कॉम्प्लिकेशन जैसे कि इमरजेंसी में लेकर आए हैं वो सिचुएशन पे ना पहुंचे। और इसी को ध्यान रखते हुए ट्रेनिंग आपने रिसर्च सेंटर उनका और उसका एक और इनिशिएटिव है जो कि मदर एंड चाइल्ड, और उसके बारे में 2 मिनट बहुत ही ब्रीफ में जन्मोत्सव के बारे में डॉक्टर ऋषिकेश वाक्य बताया। नमस्कार। इंग्लिश मध्ये प्रिपेअर केलं होतं पण आठवण प्रस्ताव आला की मराठीत बोला चालेल ना? तर ह्या सर्व जे उपक्रम आपले आहेत त्याची जी सुरुवात होते ते एका आईच्या कल्पनेपासून आणि त्याच वेळेला समजा एका आईला आपण
चांगल्या आरोग्य सुविधा प्रदान केल्या तर बरेचसे आजार आपण टाळू शकतो. तर असा एक कार्यक्रम आपला डिवाइन मदर अँड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ह्या नावाचा इकडे चालतो. वेगवेगळी प्राथमिक आरोग्य केंद्र जसे वावंचा, आपटा, आजिवली, ट्रायबल सब सेंटर्स, NIPH सारखी संस्था आणि सत्यसाई संजीवनी सारखी संस्था हे एकत्र येऊन हे कार्यक्रम पनवेल तालुक्यात राबवतात. या अंतर्गत आतापर्यंत आपण 7,700 गर्भवती महिलांना आरोग्य सुविधा प्रदान केलेल्या आहेत व 26,000 पेक्षा जास्त मुलांना आपण आरोग्य सुविधा प्रदान केलेल्या आहेत. आम्ही जेव्हा बोर्डरूम मध्ये होतो सर तेव्हा आपण कॉमेंट्री कशी दिली जाते त्याच्याबद्दल आम्हाला मार्गदर्शन दिलं. पण खरंच ह्याच्याबद्दल आमचे जे मेन स्टार्स आहेत ते आपल्या समोर इकडे बसलेले. आपल्या डॉक्टर सारिका म्हात्रे, आपल्या डॉक्टर मनीषा भटकर, आपल्या डॉक्टर क्रांती पडलेस ह्या सगळ्या ऑब्स्टेट्रिशियन्स आहेत ज्यांच्याकडून हे सगळ्या सुविधा आपण प्रदान करतो. त्याच्यामध्ये ऑब्स्टेट्रिशियन्स कडून चेकअप, औषधं, इन्व्हेस्टिगेशन, 3 प्रकारच्या सोनोग्राफ्या ह्या सगळ्या प्रकारच्या सुविधा देऊन जन्म झाल्यानंतर बाळ 6 वर्षाचं होईपर्यंत वेल बेबी क्लिनिक मध्ये आपण ह्या सुविधा त्यांना प्रदान करत असतो. थोडक्यात काही महिला व त्यांची बालकं आपण बोलवलेले आहेत, पण प्रत्येक आई आणि बाळामध्ये एक कहाणी लपलेली आहे. ती कहाणी समजा आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवू शकतो तर मला वाटतं की आजचा कार्यक्रम सार्थ झाला. पहिली आपली माता आहे तेजल कातकर. तेजल 24 वर्षाची आहे व निताज हा ट्रायबल एरिया आहे वावंचे बंधारा तिकडून ही आलेली आहे. ही तिच्यासाठी एक प्रेशियस प्रेग्नन्सी आहे कारण ह्याच्या आधी 2 जुळी मुलं काही कारणास्तव देवानी आपल्याकडे जवळ मागून घेतली. पण रेग्युलरली एका ट्रायबल एरियामध्ये आपले डॉक्टर तिकडे जाऊन तिला आपण सुविधा देतोय आणि ती इथे येऊन सोनोग्राफी करते. अशी तेजल कातकरी आज तिच्या बाळाबरोबर आपल्या सोबत आलेली आहे. तर तिचं आपण स्वागत करूया. दुसरा उपक्रम सांगतो शिर्डी कन्स्ट्रक्शन साइट्स मध्ये. आता मुंबई म्हणालात तर कन्स्ट्रक्शन साइट्स ह्या आल्याच आणि ह्या कन्स्ट्रक्शन साइट्स मध्ये जी लोक काम करतात त्यांच्या आया तिकडे असतात का, मुलं असतात का. तर आम्ही एक सर्वे केला आणि आम्हाला कळलं की अशा कन्स्ट्रक्शन साइट मध्ये सैकड़ो आया व त्यांची मुलं आहेत आणि अशा जाऊन आपण आपल्या आरोग्य सुविधा त्यांना दिलेल्या आहेत. अशीच एक रोजी गिरे ही 22 वर्षाची आहे. त्यावेळेला ती शिर्डी कन्स्ट्रक्शन साइट मध्ये राहायची. आपण तिकडे जाऊन तिला मोबिलाइज केलं, तिकडे आणलं, आरोग्य सुविधा दिल्या आणि आज ही जी रोजी आहे ना अनेक दुसऱ्या महिलांना आपल्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन येते. म्हणजे एक लीडरच्या स्वरूपात तिचं परिवर्तन झालेलं आहे. अशी रोजी गिरे मला वाटतं टाळ्या तर ह्या सगळ्या आयांना अभिनव प्रजापती मुलाचं नाव आहे पण हे नाव डोळ्यासमोर आलं ना तर कशी एक आई आणि बाळ हे पूर्ण आपण कसं चक्र कव्हर करतो हे डोळ्यासमोर येतं. अभिनव प्रजापती ची आई आमच्या इकडे एएमसी क्लिनिक मध्ये यायची, चेकअप साठी यायची. तिकडे तिच्या बाळाला CHD डिटेक्ट झालं आणि इकडे येऊन त्या बाळावर कंजनायटल हार्ट डिसीज साठी ऑपरेशन ही झालं आणि आज ती वेल बेबी क्लिनिक मध्ये यायला लागलेली आहे. म्हणजे तिचा प्रवास गर्भवती मातांच्या क्लिनिक पासून ते ऑपरेशन थिएटर मध्ये ते वेल बेबी क्लिनिक पर्यंत असा हा प्रवास अभिनव प्रजापती व तिची आई प्रतिभा प्रजापती आपल्या समक्ष आहेत. हंसा आपके लिए हिंदी में बोलना पड़ेगा, चालेल ना? मराठी में आपको समजेगा? ठीक है. हंसा हे जे आहे ही नोमॅडिक ट्राइब कम्युनिटी आहे गुजरातची. तिकडे येऊन ते मायग्रेट होतात आणि मुंबईमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी त्या विकतात जसे बेडशीट्स वगैरे.
आणि 2 ते 3 महिने ते एका ठिकाणी राहतात आणि त्याच्यानंतर ते स्थलांतरित होतात. तर ज्या वेळेला ह्यांची कम्युनिटी सत्यसाईच्या इकडे राहायची तेव्हा आमच्या लोकांनी ह्या कम्युनिटीमध्ये सर्वे केला आणि तिकडे असलेल्या सर्व गर्भवती माता, स्तनदा माता व लहान मुलांना आपल्या क्लिनिक मध्ये आणलं आणि ह्या आरोग्य सुविधा आपण दिल्या. मला वाटतं की ह्यांच्यासाठी हे पहिल्यांदा असा एसीचं रूम वगैरे पहिल्यांदा असा अनुभव होता आणि आमच्यासाठी हा खूप सुखद अनुभव होता. कारण खऱ्या अर्थी ज्यांना गरज आहे त्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचू शकलो असं आम्हाला वाटायला लागलं. तर आज आपके सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां और साधुवाद. हमारे और डॉक्टर भी यहाँ हैं, डॉक्टर अमोक सहाने, लीडिंग पीडियाट्रिशियन ऑफ भारत. ये सब छोटे छोटे बच्चों को वो चेक करते हैं. डॉक्टर सोनल, डॉक्टर गरिमा, आर वॉलेंटियर, सेवा दल, जितना नाम ले उतने कम है. 22 लोगों से ज्यादा ये टीम है. लेकिन ये टीम सिर्फ सेंटर में नहीं, गांव-गांव में जाके, ट्राइबल एरियाज में जाके आज हम लोग की सुविधा प्रदान कर रहे हैं. तो कमेंटेटर ने तो अपनी बात रख दी सर, लेकिन जो हमारे स्टार है उनको हम कहेंगे कि प्लीज आप एक बहुत बड़ाई तो नहीं कह सकते अभी, लेकिन एक आपलं जे काय म्हणतात मराठीत शगुन, हा एक शगुन म्हणून तुम्ही सगळ्यांना द्या. डॉक्टर मनीषाने दिलेला आहे शगुन. डॉक्टर सारिका, डॉक्टर क्रांती फडणीस, मीनाताई ठाकरेमध्ये त्या असतात, आमच्या इकडे पण काम करतात. हजारो महिलांना त्या सुविधा देतात. आणि आमचे स्टार पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अमोक शहाणे, त्यांचं प्रचंड काम किशोरवयीन मुलींकडे पण डॉक्टर अच्छा एक छोटासा फोटो सर आपल्या बरोबर सगळ्यांचा घेऊया. नाही हे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. आणि खरंच इंग्लिश मध्ये प्रिपेअर करत होतो पण मातृभाषेत बोललं की कधीही ते आपल्या मनाला लागतं. हे 2 शब्द बोलून धन्यवाद. स्पेशल थँक्स टू डॉक्टर सचिन जाधव सर. तुम्हाला थँक्स बोलायचे. आमचं पहिल्या दिवसापासून आजपर्यंत जेवढा सपोर्ट शासकीय यंत्रणेमधून आम्हाला मिळालेला आहे त्याच्यात खूप मोठा योगदान आणि वाटा हे आपल्या डॉक्टर सचिन जाधवांचं आहे. सर डॉक्टर ऋषिकेश, थैंक यू सो मच. ट्रूली टीम वर्क क्या होता है ये अभी हमने देखा कैसे गांव-गांव में हर आदमी की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है. पर आप लोग जिन सबको सुनने के लिए आए डॉक्टर श्रीनिवास एंड सुनील गवास्कर, इट वुड बी वो बोलते हैं ना कि अपनी औकात नहीं, मेरी औकात नहीं है कि मैं इनको यूज करूँ. दुनिया जानती है, वर्ल्ड जानती है. पर एक चीज जो इनके बारे में शायद लोग कम जानते हैं वो ये है कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सत्यसाई संजीवनी हॉस्पिटल एक ट्रस्टी है. ये अपना टाइम, समय, पैसा हर साल काफी बच्चों की जाने बचाते हैं. ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, डोनेट करते हैं सर्जरी के लिए. तो हम आज इनके बारे में, क्रिकेट के बारे में एब्सोल्युटली कोई बात नहीं है. हम वो एस्पेक्ट देखेंगे इनके बारे में कि वो सत्यसाई संजीवनी हॉस्पिटल से क्यों जुड़े हैं, क्या है एज अ ट्रस्टी दिस रोल, दिस विजन एंड एवरीथिंग. ओवर टू यू सर. नमस्कार. सत्यसाई भगवान श्री सत्यसाई बाबा चर्चा साष्टांग नमस्कार. शायद आप हिंदी में बात करूँ क्योंकि यहाँ पे लोग हैं शायद मिक्स है. तो आवाज आ रही है आप लोगों को?
तो आप सब लोगों ने ये सुना कि साई संजीवनी हॉस्पिटल्स में क्या होता है, और आपके सामने भी जो पेशेंट्स थे वो आए, जो डॉक्टर्स जो उनकी देखभाल करते हैं, जो इतना समय बिताते, जो इतना परिश्रम करते, उनके बारे में भी आपने सुना। मुझे सिर्फ ये कहना है कि 12 साल पहले 2012 में जब पहला अस्पताल बना था नया रायपुर छत्तीसगढ़, तब किसी को पता नहीं था कि 2024 में 30,000 सर्जरीज पूरी हो जाएगी। रायपुर के अस्पताल के बाद में पलवल में अस्पताल खुला, फिर यहाँ पे खारगर में अस्पताल खुला, अब एक तेलंगाना में शायद जुलाई और अगस्त में, हैदराबाद के करीब जुलाई अगस्त में और एक खुलेगा। फिजी में सत्य संजीवनी अस्पताल है, नाइजीरिया में 2 अस्पताल है साई संजीवनी हॉस्पिटल, श्रीलंका कोलंबो में है, कोलंबो के पास है। और सारे के सारे हॉस्पिटल्स में सिर्फ एक ही मोटो है, जैसे कि श्रीनिवास जी ने अभी बताया था कि ओनली दिल नो बिल, बिल के बिना दिल। और यही जो एक प्रेरणा बनती है, उसी के साथ ही इस मिशन को जुड़ने का मुझे सौभाग्य भी मिला। लोग मुझे पूछते कि क्यों कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में क्यों, क्योंकि कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स जो हमने देखे, बच्चों को देखा, 6 दिन के बच्चे होते हैं या कभी कभी 2 महीने के बच्चे होते हैं, उन पर जब सर्जरी होती है उसके बाद में अभी हमने देखा कि मतलब उनकी ज़िंदगी आगे जाकर भी सफल ज़िंदगी बन सकती है। उनको वो दूसरा मौका मिला है ज़िंदगी में, गिफ्ट ऑफ लाइफ, सेकेंड इनिंग्स अगर आप कहना चाहेंगे तो दूसरी पारी कहना चाहेंगे, दूसरी पारी। और जब दूसरी पारी की बात आती है तो मुझे मेरे करियर की याद आती है। जब मैंने भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू किया था, पहली मैच खेल रहा था मैं ट्रिनिडाद के मैदान में, क्वींस पार्क ओवल के मैदान में, जैसे 12 पर बल्लेबाजी कर रहा था। और 12 पर बल्लेबाजी करते हुए मैंने ड्राइव किया, एज लग गई, और मेरे हिसाब से अभी तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गारफील्ड सोबर्स सेकंड स्लिप पे खड़े थे, उनके पास मतलब हम कहते थे कि डॉली कैच, सर डॉली कैच गया तो वो उनके हाथ से निकल गया। और मुझे मेरे क्रिकेट के जीवन का दूसरा लाइफ मिला, जीवन दान मिला। और उसी के साथ मैंने उस पारी में 65 रन बनाए। 65 रन बनाने की वजह से मुझे दूसरी टेस्ट में चुना गया। तो उन दिनों में तो जगह, एक टेस्ट के बाद में आपकी जगह बाहर निकल जाती, अगर आप सफल नहीं होते तो आपको बाहर निकाला जाता। तो मुझे और एक टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, वहाँ पर मैं 4 पर बल्लेबाजी कर रहा था और उस वक्त मैं शॉट खेलने का प्रयास किया और ये गेंद बड़ी तेजी से गई सेकंड स्लिप में। गारी सोबल वहाँ खड़े थे, उनके छाती पर लगकर गेंद ऊपर गिर गई, पर ऊपर उछाल गई, पर पकड़ने से पहले जमीन पर गिर गई। मुझे और एक बार जीवन दान मिल गया और उस जीवन दान से मैंने मेरी पहली सेंचुरी मारी उस पारी में। उसके बाद में भगवान की कृपा से 16-17 साल में भारतीय टीम में टिका रहा। और ये जो मुझे जीवन दान, उसके बाद में भी जब आपकी पारियां होती तो उसमें जीवन दान मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था। पर ये जो मुझे मतलब शुरुआत में, मेरे करियर के शुरुआत में मुझे जो जीवन दान मिले, उसकी जब याद आती थी तो मुझे उसी के साथ ये जो लगाव हुआ, तो ये
सत्य साई संजीवनी अस्पताल की जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स की जो सर्जरीज होती है वो लगाव हुआ, क्योंकि उसी के साथ में मतलब जो कहते हैं ना एक कनेक्शन बन गया कि अगर मुझे वो जीवन दान नहीं मिलता तो मैं शायद यहाँ पे आज बैठा नहीं होता। वो जीवन दान मिले इसलिए अगर मैं भी कुछ कर सकूँ, मैं भी जुड़ सकूँ, तो उसी हिसाब से मैं तो हमारी फैमिली तो सत्य साई बाबा की डिवोटीज तो 50-60 साल से है, तो उनका तो जो प्यार है, उन्होंने जो हमारी फैमिली पर उनका हाथ है, तो क्रिकेट खेलने के बाद एक ऐसा जब मौका मिलता है कुछ करने के लिए, तो ये मुझे मौका मिला तो मैं भगवान को आभार देना चाहता हूँ, उनके चरणों में गिरकर उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी, मेरी फैमिली की ज़िंदगी का इतना देखभाल किया है और आपने ये मुझे मौका दिया है, ये मेरे लिए सुनहरा मौका है। और इसी सोच से मैं यहाँ पे हूँ। जो भी मैं कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा कहते आया हूँ कि ये मेरी तीसरी पारी है। पहली पारी तो क्रिकेटर के नाते थी, दूसरी पारी जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस, कमेंट्री, टीवी कमेंट्री उस हिसाब की है और वो भी अभी अभी चल रही है। पर ये जो तीसरी पारी है ये मेरे लिए सबसे मतलब फुलफिलिंग जो बोलते हैं वो है। और वो इसीलिए है कि मैंने अपने आंखों से देखा है कि अस्पताल में जब सर्जरी होती है, मैंने अपने आंखों से देखा है कि जब पेरेंट्स आते हैं अपने बालक को लेके, और कभी कभी आते दूर से आते, शहरों में कभी पहुंचे नहीं है। शहर को देखकर, शहरों में इतनी गाड़ियां होती, इतने सारे लोग होते, इतनी सारी बड़ी बिल्डिंगें होती है, तो वो देखकर कभी कभी वो मतलब हिचकिचाते हैं कि कहाँ आए। और फिर अस्पताल में उनका जो बच्चा है वो तो बीमार है, और जो शायद उनके विलेज के जो डॉक्टर्स उन्होंने कहा होगा कि ये बहुत सीरियस बीमारी है, तो उसके बाद में यहाँ पे आना, और जब सर्जरी के बाद में जब डॉक्टर आके आप कहते हैं, उनके सामने जाते हैं, तो वो नर्वस होते, हम भी नर्वस होंगे, कोई भी नर्वस होगा, वो नर्वस होते हैं। और जब डॉक्टर कहते हैं उनको कि आपका बच्चा ठीक होगा, पूरी जिंदगी ये जो हमने सर्जरी की है उससे अभी पूरी जिंदगी भर उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो उनके चेहरे के जो भाव बदलते हैं ना, एक तो मतलब कंफ्यूजन का भाव होता है कि हम कहाँ पे आए, ये क्या है। दूसरा मतलब आपको ये खुशखबरी मिलती है तो कभी कभी लगता है नहीं नहीं ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। पर जब पता चलता है कि नहीं डॉक्टर सही बोल रहे हैं, उसके बाद में जो उनके चेहरे का जो भाव है वो आनंद का भाव होता है, फिर आंसू निकलते हैं। वो देखकर, वो मैंने देखा है अपनी आंखों से, और मैं ये कहता हूँ कि वो देखकर मुझे इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है जो मुझे भारतीय टीम के लिए 200 करने से भी नहीं हुआ। और यही आनंद हम अब देखना चाहते हैं हर एक पेरेंट्स के मुंह पर। यही आनंद हम देखना चाहते हैं कि जितने बच्चों की जानें हम बचा सके वो देश के लिए अच्छा है। श्रीनिवास जी ने कहा कि सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे बच्चे हैं, और बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे आगे जाकर अपने देश को आगे ले जाने वाले हैं। तो उन पर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम देश में इन्वेस्ट करते हैं। और इस मिशन के साथ जुड़ने का जो मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं और एक बार भगवान से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके चरणों में उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोग आए, ये भी मतलब हमारी टीम में आप शामिल हुए हैं, क्योंकि आप ये संदेशा देने वाले बाहर जाकर, तो आप भी हमारी टीम के सदस्य हुए। आज मेरे मित्र सुरेश गांधी आए हैं, वो भी रोटरी क्लब के तरफ से
हमारे मिशन में अभी शामिल हो रहे हैं। और ये तो खुशी की बात है, क्योंकि जितने लोग शामिल होंगे, जितने इसका जो संदेशा है जितना बाहर जाएगा, उतनी हम ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग आए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यही कहना चाहूँगा कि भगवान का हाथ जो है वो हम सबके सर पर रहे। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you so much, and हम सब यहाँ पे चाहते हैं, I'm sure everyone will agree with me, हम चाहते हैं कि आपकी जो तीसरी इनिंग है ना, वो पहली वाली 2 से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इस चीज़ के लिए काम करेंगे, उतने ज़्यादा लोग इस परिवार से जुड़ेंगे, और जितने ज़्यादा इस परिवार से जुड़ेंगे, उतनी ज़्यादा बच्चों को फायदा। Thank you media for coming, and now we open it up for everyone. आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और आपका क्वेश्चन करिए कि कहाँ से है आप। So we'll introduce, and then later on जो और क्वेश्चन है वो चाहिए तो हम पहला क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं और किससे पूछ रहे हैं? सर मेरा सवाल डॉक्टर श्रीनिवास सर से है। सर मैं आज तक से हूँ, मेरा नाम है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने बड़ी प्यारी बातें कही, बड़ी प्यारे शब्द आपके हैं, बड़ा एकदम दिल में छू गए। दूसरा, आपको देख करके मुझे जो है शशि कपूर साहब की याद आ गई। सर आपकी शक्ल, सर आपकी मेरी बातों से सहमत होगी, आपकी शक्ल काफी सर मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जो भी बच्चा आएगा इलाज कराने के लिए, डॉक्यूमेंट उन्हें क्या कुछ देना होगा, किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? बहुत धन्यवाद भैया, आप तो एक बहुत बड़ा नाम से मेरे को जुड़ दिया। देखिए भैया, डॉक्यूमेंट ऐसा सिर्फ आधार कार्ड परिवार का चाहिए होगा, क्योंकि वो तो आजकल हर जगह तो अवश्य है, उसके बढ़कर कुछ और नहीं चाहिए हमको। 100% जो बच्चे यहाँ आते हैं भैया, वो पूरे देश के डॉक्टरों से, अस्पतालों से ये रेफर करते हैं यहाँ। जब उनकी जानकारी होती है कि बच्चे की दिल की बीमारी है, तो ये नाम तुरंत आ जाता। जैसे उसमें आप सबका बहुत बड़ा हाथ है, जैसे बार बार लोग यहाँ कहें और भैया भी कहें अभी, क्योंकि मीडिया का हाथ इसमें, वो जो बच्चे जिनको कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलता, वो आपके माध्यम से मिलता हो, वो एक बहुत बड़ी सेवा ही मानकर चलिए। तो जवाब आपका प्रश्न यही है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ एक बेसिक आधार कार्ड तो चाहिए होता है, तो बस वही लेके आएंगे। और अगर उनके पास मेडिकल रिपोर्ट्स है कुछ, तो वो तो थोड़ा यूजफुल हो जाएगा हमारे लिए, बट फिर भी हमारे पूरे टेस्ट तो करते हैं हम, और कंडीशन को एसेस करके फिर उसको सर्जिकल रेडीनेस जैसा बोलते हैं करके हम उनको सर्जरी करवाएंगे। तो इससे यही है तरीका या संजीवनी को आने का। अभी एक और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आने का भी हम कम करना चाहते हैं कि ये डिजिटल मीडियम से उसको वर्चुअल कंसल्टेशंस भी अभी शुरू हो गए हैं, कि उससे हम डायरेक्ट आपसे, समझ लीजिए आप आजमगढ़ से हैं या डिब्रूगढ़ से, कहीं दूर से हैं, तो इतनी दूर सफ़र करना भी एक बहुत कष्ट की बात है, और ख़ास करके एक बच्चे को, दिल की बीमारी बच्चे को लाना बहुत कष्ट की बात होती है। तो उसको हम वर्चुअल कंसल्टेशन मोड पे भी चल रहे हैं आजकल। तो समस्या भैया, खास करके पत्रकार भाई बहन को ये तो बताना है कि समस्या बहुत गंभीर है देश में, बहुत लोग पहुंच नहीं पाते अस्पतालों को। तो ये सबकी अपनी एक धर्म और फर्ज बनती है कि इसके बारे में अपन कुछ करना है। तो बस इतना ही है इस सवाल का जवाब भैया। लास्ट 12 साल में आपने 30,000 बच्चों का ऑपरेशन किया है जी, तो कौन से सेंटर में न्यू बोर्न में कितने के, अदर सेंटर में कितने हैं? हाँ,
वैसे तो अभी 3 सेंटर अपने जारी हैं। पहला सेंटर जैसा बताया गया 2012 में छत्तीसगढ़ में रायपुर, नवा रायपुर में शुरू हुआ, तो वो सबसे पुराना सेंटर है अपना। तो अधिक मात्रा में सर्जरीज तो वहीं हुए हैं। उसके बाद 2018 में सोचता हूँ शायद पलवल हरियाणा के क्षेत्र में दूसरी सेंटर बनी, और तीसरी यहाँ बनी अपनी ये 5-6 2019 में यहाँ पे हाँ 2019 में यहाँ अपना शुरू। यहाँ पे 3600 सर्जरी ऑपरेट हुई मॉर्निंग में। ये सेंटर में 3600 हुआ है पिछले 4 साल में। जैसे सर ने बताया सबसे ज्यादा रायपुर में हुई है, 12,000 से ज्यादा, 15,000 से ज्यादा, और फिर पलवल में बाकी यहाँ पे। जी हाँ, ये एक बहुत ही अवश्य इनिशिएटिव है अपने देश और अपने राष्ट्र के लिए। ये 12 ही साल नहीं बट उससे भी ज़्यादा जैसा मेरा संबंध रहा समाज सेवा के क्षेत्र में, तो काफ़ी रूरल यूथ को देखने का मुझे अवकाश मिला। और जैसे हमारे ऐसे तो अभी 12 संस्थाएं हैं देश में, और पूरे बहुत अनसर्व ज्योग्राफीज में होते हैं, तो वहाँ पे उत्तराखंड से लेके यवतमाल में भी है, बहुत जगह पे है अपने। तो वहाँ मुझे देखने को मिलता है कि काफ़ी अपने लड़कियाँ खास करके और बच्चे भी आजकल, उनको ज़िंदगी में मौका मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना भी चाहते हैं, और उनमें ये ऊर्जा होती है। तो इससे जैसा मैं थोड़ी देर पहले बोला, पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने ये बस्तर इलाके के बच्चों से हमारी समझौता बनाई, और वो असलियत में भाई ये बहुत दिल को छूने की बात है। देखो वो ऐसे प्रदेश है वो जो नॉर्मल आदमी नहीं पहुंच सकता भैया वहाँ पे, तो वहाँ हमारे पास आजकल अगर उनका जरा वो कोई बच्चे बस्तर के हैं तो बुलाना यहाँ पे, क्योंकि अगर आप उनको देखेंगे वो एक एग्जाम्पल है ये कार्यक्रम इनिशिएटिव का। आज जैसा मैं बताया, वो कभी एक जूता पैर नहीं देखे थे, एक बस को नहीं देखे थे, एक रेलवे गाड़ी नहीं देखे थे, स्कूल कुछ छोटा मोटा गए होंगे, आज वो क्या क्या कर रहे हैं वो। तो ये है ये इनिशिएटिव। तो ये एक महाराष्ट्र स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव की एफर्ट है ये। तो मई 1 से ये 75 स्टूडेंट्स की पहली शुरुआत है। तो ये खास बात यह है कि पूर्णतः निःशुल्क है भैया, तो उससे भी ज़्यादा एक 6,000 रुपये स्टाइपेंड भी देने वाले हैं उनको, बेचारे उनको कपड़े और आसपास के लिए भी। ये 1 साल का बहुत स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक प्रोग्राम है, और 1 साल के बाद वो एक एक्रेडिटेड वेल ट्रेन्ड नर्सिंग असिस्टेंट बनेगी या टेक्नीशियन बनेगी, वो कोर्सेज के माध्यम से है। 10th क्लास या 12th क्लास अगर पास है तो बस है इसके लिए। अब पूरी फैकल्टी है हमारी, जो आप शायद आप ज़रूर देखना, स्किल्स लेबोरेटरी या बाजू में है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देना है, जैसा विकसित भारत बोलते हैं यहाँ पर 2047, वो कैसा होगा, वो अगर अपॉर्चुनिटी अपन बच्चों को देंगे तो वो करके दिखाएंगे अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो ये है, उनको फ्री अकोमोडेशन भी रहेगा, फ्री फूड भी रहेगा, पूरा स्टे। Sir, firstly, is there any reason you started your program for the heart project? कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि आपके, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जी, क्या ऐसी बात रही कि आपको लगा कि हार्ट के लिए ही काम करना है? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल, अभी जैसा हार्ट का इशू है, हम आजकल देख रहे हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी इशू, बीइंग जर्नलिस्ट हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे हमने कई देर होती हुई खास करके तुरंत बात। तो उस जैसे हार्ट को लेकर आपने किया, क्या फ्यूचर में आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी काम करें? आपने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। पहला तो क्यों बच्चों की दिल की बीमारी में आप फोकस किए। भाई साहब, ये जैसे सुनील और हम 50 साल से ज़्यादा भगवान श्री सत्य साई बाबा से जुड़े हैं। तो 2011 में उनकी समाधि हुई थी। जब मेरा एक ही ज़िंदगी का मकसद था कि मैं
क्या करूं अभी देश और मेरी ये सेवाओं को आगे बढ़ाते हुए। तो फिर मेरे को सरकार से एक निमंत्रण आया था, श्री केशव देशीराजू करके सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि उनको जानकारी थी कि मैं अस्पतालों की निःशुल्क सेवाओं में काम करता था। शायद इस समावेश में मैं बताना ही है कि मेरी माँ ये संस्था शुरू की 1970 में। वो एक यूनाइटेड स्टेट्स में गायनोकोलॉजिस्ट थी, भगवान की बुलावा में वो आकर ये निःशुल्क सेवाएं की शुरुआत की थी। तो ये एक सांप्रदाय है हमारी जीवन का कि ये सेवाएं पहुंचाना। तो फिर मेरे को लगा कि मैं देश के लिए क्या सेवा जो ऐसी बहुत अवश्य है उसको क्या हो सकता है जो पहुंचाऊं। तो केशव देशीराजू जी जो बुलाए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि देश की सबसे बड़ी नीड है इन्वेस्टमेंट इनटू चिल्ड्रन। As a nation, we have grossly been insufficient and inadequate in our focus for children and particularly rural children. तो ये क्लियर डायरेक्शन था और डायरेक्टिव था। तो दूसरा, मैं दो बहुत ही रेस्पेक्टेड सर्जन हैं जिनके नाम शायद आप जानते भी होंगे, डॉक्टर प्रोफेसर वल्युथन करके, वो एक जाना माना कार्डियक सर्जन है एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ श्री चित्र तिरुनाल इन त्रिवेंद्रम। He was the chairman of the board of governors of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi also. तो बहुत जाने माने व्यक्ति थे वो। उन्होंने भी मुझे यही बताया कि देश के लिए आवश्यकता है बच्चों की हेल्थ। एज अ नेशन आवर इन्वेस्टमेंट इज इनएडिक्वेट एंड इनटू रूरल रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो वो मुझे ग्रेट एंडोर्समेंट मिला और ग्रेट डायरेक्शन मिला। तीसरा, जब भगवान की आदेश थी मुझे कि आप छत्तीसगढ़ जाओ, मैं कभी चुना नहीं छत्तीसगढ़, मगर भगवान की आदेश था मुझे, एक सदगुरु मधुसूदन के माध्यम से ये मेरा आदेश मुझे मिला। तो फिर मेरा पहला छत्तीसगढ़ जाना था। सुनील भी वो आया था काफ़ी बार वहाँ मेरे साथ। तो छत्तीसगढ़ राष्ट्र आप जानते हैं एक अपना एस्पायरिंग स्टेट ऑफ आवर कंट्री थी, और वहाँ पे कभी कुछ कार्डियक हेल्थ की फैसिलिटीज़ बहुत कम है वहाँ पे। तो वहाँ शुरू करना एक मेरे लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक साल के अंदर हमने एक हार्ट शेप्ड हॉस्पिटल खड़ा की थी, और वो एक शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हमारी ज़िंदगी की है। और पहला सर्जरी भी एक उदाहरण है। देखिए आप ये प्रश्न का, पहली बच्ची थी वो हमारे पास आई, 20 साल की बच्ची थी वो मैं पूछा उसको कि बेटा तुमको कब पता चला तेरे को दिल की बीमारी? भाई बहन, वो जब 3 साल की थी उसको उनके माँ बाप को पता चला कि उसको दिल की बीमारी। 3 साल से लेकर 20 साल तक वो भटकते भटकते वो जिंदगी, आपको सोचा अगर मैं आपका दिल को दबाऊं आप कैसे जी पाऊं? वो 17 साल जी वो। और वो हमारी पहली सर्जरी कीर्ति वर्मा थी जिसकी सर्जरी हम की। और एक बहुत ही खुशी की बात है भाई बहन कि वो आकर 12 साल बाद पहला गिफ्ट ऑफ लाइफ जो वो पाई, 30,000th चाइल्ड को वो गिफ्ट ऑफ लाइफ दी। वो एक इतनी ग्रेट गिफ्ट है। वो कहाँ की थी? वो एक माली था, वो माली, उसके माँ बाप, उसके पिताजी नहीं है। वो आकर कहीं दूर से आकर बोली ये मैं करूँगा करके, वो एक गिफ्ट। तो ये होता है परिवर्तन अबाउट चाइल्ड हार्ट डिजीज। तो इससे बिकॉज द डायरेक्शन वाज क्लियर दैट द कंट्री, एंड दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई हैव इट इन राइटिंग, द कॉमनेस्ट डिफेक्ट एट बर्थ फॉर ऑल न्यूबॉर्न्स इन इंडिया। This is a letter by direction written by the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, to us, that this is the commonest defect at birth amongst newborns. Congenital का अर्थ होता है by birth, तो ये common है। तो उसके लिए तो संस्था चाहिए, और ये संस्था इसीलिए खुली है। और खास करके हम बहुत अनसर्व ज्योग्राफीज में होते। यहाँ पे भी महाराष्ट्र में आना था जब फडणवीस जी की सरकार थी, उन्होंने बुलाया हमें और ये जगह दिखाई गई जिससे हम सरकार से हम खरीद के लिए थे। और दूसरा, आप बहुत ही करेक्ट प्रश्न पूछे अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांट। हमारे फर्स्ट सेंटर इज अ डिक्लेयर्ड
ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर। आप शायद जानते होंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की बहुत कम संस्थाएं होती, महाराष्ट्र में 2-3 ही होंगी, दिल्ली में 2-3 काफ़ी है, वैसे पूरे देश में भी बहुत ज़्यादा नहीं है ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने। एक सच्चाई की बात है, हमारी सत्य संजीवनी नवा रायपुर इज एन ऑर्गन डेडिकेटेड हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर। अब हमारे पास काफ़ी होमोग्राफ स्टोर में है और भगवान की कृपा से बहुत जल्दी ही हम सेंट्रल इंडिया फर्स्ट पीडियाट्रिक हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी। और हम काफ़ी संस्थाओं से, ये प्रश्न का बहुत महत्व प्रश्न ही है, वी वर्क विथ मल्टीपल NGOs टू सेंसिटाइज सोसाइटी अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बिकॉज वो भी बहुत ही अवश्य बात है आजकल। तो काफ़ी वे हमारा एक विंग है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंसिटाइजेशन में काम करती है। सुनील सर जी सर, तुमच्या बॅटने अनेकांच्या हृदयात धडकी भरवली, पण आज जेव्हा तुम्ही या आरोग्याच्या क्षेत्रामध्ये एक समाजसेवेचं काम करताय आणि हृदय वाचवण्याचा प्रयत्न, तर हे जे ट्रान्सफॉर्मेशन आहे, एकीकडे आपल्या प्रतिस्पर्ध्याच्या हृदयात धडकी बनवणारा क्रिकेटपटू आणि आता उद्याच्या भविष्याचं हृदय सुरक्षित करणारा क्रिकेटपटू, कसं बघता तुम्ही हे ट्रान्सफॉर्मेशन? मी माझी आत्या, माझ्या वडिलांची छोटी बहीण, त्या डॉक्टर होत्या आणि त्यांचं जे क्लिनिक होतं, मी जेव्हा आत्या हॉस्पिटल ग्रँड रोडच्या तिकडे राहत होतो तिकडे त्यांचं क्लिनिक होतं, जवळच होतं. तर माझी आई त्यांना भेटायला म्हणून मला घेऊन जायची. तर त्यांचं जे क्लिनिक होतं ते क्लिनिक एक आपण बोलतो ना की फिनान्शियली चॅलेंज सोसायटीच्या तिकडे होतं आणि तिकडे त्यांचे जे पेशंट्स यायचे आणि त्यांना बघायचे, ज्या दृष्टीने, ज्या प्रेमाने माझ्या आत्यांकडे ते बघायचे, म्हणजे की माझ्या आत्यांनी काय केलं, त्यांना डॉक्टर होत्या, मेडिसिन द्यायच्या काय द्यायचं, तेव्हापासून माझ्या मनामध्ये डॉक्टर व्हायची महत्वाकांक्षा होती. त्यावेळेला म्हणजे मी कदाचित 4, 5, 6 वर्षाचा असा, जास्त नाही. पण काय की 10-11 वर्षाचं झालं तेव्हा मला समजलं की माझ्याकडे डॉक्टर व्हायला किडनी नाही, तेवढं नाही माझ्याकडे, की त्यामुळे मग क्रिकेटमध्ये रस झाला. पण जे मी बघितलं होतं त्यापासून मला काय करता येईल हे मला नेहमीच वाटायचं की कसं काय करता येईल. तर हा योग आला मला आणि त्यामुळे याच्याशी मी जोडलो. त्याच्या अगोदर देखील सत्यसाई सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स आहेत, बँगलोरला एक व्हाईटफील्डला आहे, बँगलोर व्हाईटफील्ड आहे. तर ते मला माहिती आहे की तिकडे काय काय व्हायचं. तर त्यामुळे एक जेव्हा मला हे नवं रायपूर, न्यू रायपूरचं बद्दल तिकडे गेलो होतो इनॉग्रेशनला, ते तिकडे तेव्हा बघून मग त्याच्यानंतर म्हणजे एक जी जवळीक असते ती म्हणजे एकदम पक्की झाली. आणि सत्यसाईंनी तुम्हाला असं काही सूचना केल्या होत्या की आरोग्याकडे लक्ष द्या, असं कधी तुमच्या संभाषणात तुमचं फार प्रदीर्घ त्यांच्याशी नाही, फक्त त्यांचं मला नेहमीच सांगायचं की तू एवढी सेवा करशील समाजाची, तेवढं त्याचा जो तुला आनंद मिळेल तो तुला कुठेही दुसरीकडे मिळणार नाही, हे त्यांचं फक्त सांगणं होतं. आणि तेच करायचा मी प्रयत्न करतोय. क्रिकेटशी पण जुळलोय, इथे पण जुळलोय. नशिबाने तेच माझी देखभाल करतायत. म्हणजे काय, मला लोक विचारतात अरे तू एवढा हेक्टिक इकडे ट्रॅव्हल करतो, पण सत्यसाई बाबा म्हणजे देखभाल करतायत. आणि त्यामुळे त्याच्याबरोबर आज जुळलोय. आणि शेवटी परत सांगायचं म्हणून की जी महत्वाकांक्षा होती की डॉक्टर बनायची ती पुरी झाली नाही, पण मला 5 युनिव्हर्सिटी पासून डॉक्टरेट मिळाले. त्यामुळे मी वापरत नाही, पुष्कळ लोक वापरतात ना डॉक्टर सुनील गावस्कर, मी नुसतं श्री सुनील गावस्करच वगैरे करतो.
पण त्याची कशी होती ते म्हणजे ते डॉक्टर म्हणजे वापरायचं झालं तुम्ही वापरू शकता. आवडेल लोकमतमधून मला गावकर सरांना विचारायचं आहे, तुम्ही या हॉस्पिटल सोबत जोडलेला आहात, सचिन तेंडुलकर सुद्धा या हॉस्पिटल सोबत जोडलेले आहेत, तर अनेक क्रिकेटपटू आहेत किंवा अनेक अभिनेते आहेत त्यांचे तुमचे संपर्क असतील, पनवेल परिसरात रायगड जिल्ह्यात त्यांचे फार्म हाऊस आहेत किंवा अन्य राहतात देखील, तर त्यांना या हॉस्पिटल सोबत जोडण्यासाठी आपण काय प्रयत्न केले आहेत का? कारण लहान मुलांना जीवनदान देणारे हे हॉस्पिटल आहे. सचिनला तर माहितीच आहे. सचिन इकडे याच्या म्हणजे पायाभरणी करण्यासाठी इथे या हॉस्पिटलच्या पायाभरणी करण्यासाठी आला होता आणि त्याला माहिती आहे. तो पण आमच्या सगळ्या जे कॅम्पेन्स असतात जेव्हा त्याला वेळ मिळतो तेव्हा येतात. आमची जे वन वर्ल्ड वन फॅमिली मॅच झाली होती, चॅरिटी मॅच होती, तेव्हा तो आला होता. म्हणजे मला वाटतं 10 महिने खेळला नव्हता, 1 वर्ष खेळला नव्हता, तरी पण येऊन खेळला. परत ते अवेअरनेससाठी तो म्हणजे आमच्यासाठी नक्कीच जोडला आहे. आणि बाकीचे जे अभिनेते वगैरे त्यांच्याशी एवढा माझा संपर्क नाही आहे. तर एक श्रीनिवासजी पण सांगतील की केव्हाही श्रीनिवासजींनी सचिनकडे अप्रोच केला आहे, सचिनने कधी नाही. I hope जैसे कि डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि 17 साल एक लड़की को इंतजार करना पड़ा था अपना ऑपरेशन करवाने के लिए। आप सबके माध्यम से ऐसा हो कि ये इंफॉर्मेशन कि ऐसा हॉस्पिटल है, इस तरह की सेवा होती है और हर कोई इसका यूज कर सकता है या यहाँ आ सकता है। अगर आप लोग इस परिवार के साथ मेरे से जुड़ के, जब से गावस्कर ने कहा कि आप लोग इस परिवार के हिस्सा हो गए हैं, आज जुड़ के जितना इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उतने ज़्यादा हिंदुस्तान में कम से कम किसी बच्चे को 17 साल नहीं रुकना पड़ेगा, 17 दिन नहीं रुकना पड़ेगा अपना इलाज करवाने। So that's the only thing I can do. So there is lunch for everyone.